गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੌਂਡ ਫਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ। अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है तो इक्वल डिवीजन होनी है, एक इलैक्ट्रॉन सी को चला गया, एक जेड को, और की जनरेट होया साडे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब फ्री रेडिकल दी हाइब्रिडाइजेशन कितनी सीगी sp2। ठीक है बेटा जी, और इन्हां दा स्टेबिलिटी ऑर्डर सी टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, दैन सेकेंडरी, दैन प्राइमरी, दैन मिथाइल। उस तो बाद बेटा हैट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਾ ਕਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾ ਅਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਾਰਬਾ ਕਟਾਇਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ sp2, ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ sp3। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਬਾ ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ। ਔਰ sp3 ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ। ਆ ਸੀਗਾ ट्राइगनल प्लेनर एंड दिस इज पिरामिडल। ठीक है बेटा जी, और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮਿਥਾਈਲ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟਸ। देखो अटैकिंग रीएजेंट ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ मतलब ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਲਵਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਜਾਂ ਚਾਰਜਡ। ਚਾਰਜਡ मतलब ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਨੀਅਮ ਆਇਨ, ਆਇਓਡੀਨੀਅਮ, ਬ੍ਰੋਮੀਨੀਅਮ, ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋਏ ਚੈਪਟਰ, these are also called as ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਹੈ, 3, ਸਟਿਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BF3 ਕੋ 3 ਬੌਂਡ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੇ SO3 ਦੇ 3 ਬੌਂਡ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਵਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਵਿੰਗ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗੇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਵਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, मतलब ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਐਲਕੋਕਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਈਨੋ। तो और अगर वो न्यूट्रल है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स होंगे या प्लेंटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन बॉन्डेड इलैक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होंगे जिहड़े कि पॉजिटिव चार्ज ते अटैक करनगे, जिवें कि अल्कोहल, वाटर, अमाइनो। इन्हां दे देखो इलैक्ट्रॉन है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, 2 ਪੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟਸ। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन आई है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा बेटे, सब्सटीट्यूशन होगी, एक की जगह दूसरा आएगा। कैसे आएगा, नाउ सी मेरे पास था CH3Br NaOH। अब नेगेटिव इसमें चार्ज क्या है Br, प्लस चार्ज क्या है CH3, इसमें प्लस चार्ज ये है, नेगेटिव ये है। नेगेटिव की एक की जगह दूसरा आ गया। ठीक है, देखो Br निकल गया, OH आ गया और NaBr। अब किसने अटैक किया, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब कौन सा चार्ज लविंग हुआ, पॉजिटिव चार्ज लविंग, न्यूक्लियस लविंग, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ।
तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा फाइल न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन भी हो सकती है, ठीक है, बट ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ, मेरे पास था CH3Br, इसके साथ रिएक्ट करवाया हमने NaOH, और OH नेगेटिव ने, यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ये बाहर चला गया, तो मेरे पास आ गया OH प्लस NaBr। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी कि एक का सब्सटीट्यूट दूसरा आ गया, एक को निकाल के दूसरा उसकी जगह एडजस्ट कर गया। अब सब्सटीट्यूशन में भी फर्दर कौन सी सब्सटीट्यूशन है, किसने सब्सटीट्यूशन की है, न्यूक्लियोफाइल ने कि इलेक्ट्रोफाइल ने। ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक किसने किया, इसने। तो इसको मैं नाम दे दूंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये डिटेल बेटा आपको +2 में करनी है कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या है। फिलहाल आप ये याद रखो कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, और ये हमने कौन सी एग्जांपल की है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट टाइप बेटा रिएक्शन की आ गई मेरे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब सिंपली ऐड करना, तो ये वहीं पे होगी जहां डबल बॉन्ड होगा। देखो ये डबल बॉन्ड टूटा, Br एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, बैलेंसी पूरी करने के लिए। ये डबल बॉन्ड टूटा, HBr एक, H कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और Br आ गया यहाँ पे। अब इसमें बेटा देखना आपको, ये तो था सिमेट्रिकल एडिशन कि Br दोनों जगह लगने, कहीं मर्जी एक Br लग जाए, यहाँ मर्जी दूसरा लग जाए। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है कहाँ H लगा कहाँ Br लगा, तो बेटा डिटेल में अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे M रूल। मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेगेटिव चार्ज वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन पे, ये दो कार्बन पे एडिशन होनी है। किस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे, इसके पास एक है, इसके पास कितने हैं, 2, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसमें नेगेटिव कौन सा, Br, विल गो टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अभी के लिए इतना याद रखो, M रूल होता है, अनसिमेट्रिकल एडिशन करनी है तो नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन्स कम है, क्योंकि बाद में हम इसकी डिटेल अगले चैप्टर में करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इसकी। अगला आ गया जी एलिमिनेशन, मतलब बाहर निकालना। एडिशन था ऐड करना, तो एडिशन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया। एलिमिनेशन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से एलिमिनेशन होगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो C, नो C, इसमें क्या हुआ, मेरे पास क्या था, ब्रोमोइथेन, 2 कार्बन है उस पर ब्रोमीन लगा है, ब्रोमोइथेन, एल्कोहलिक KOH मैंने डाला, तो क्या हो गया, इसका H और इसका Br निकल गया, HBr निकल गया, और यहाँ इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है बेटा, ओके, सो ये है एलिमिनेशन। नेक्स्ट बड़ी आसान है, रीअरेंजमेंट। सिंपली रीअरेंजमेंट करना। नॉर्मल ब्यूटेन है, AlCl3 पाया, तो क्या हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। ब्यूट 1 ईन है, एसिड कैटालिस्ट पाया, ब्यूट 2 ईन हो गया। रीअरेंजमेंट हुआ, रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन हमने रीअरेंज कर दिया। ये 4 की स्ट्रेट चेन है, ये 3 की स्ट्रेट चेन, एक साइड चेन। ये ब्यूट 1 ईन है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, ब्यूट 2 ईन हो गया। सो दिस इज सिंपली रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक रिएक्शन है कंडेंसेशन, ये मैं डिटेल में समझाती हूँ बेटा। अभी पहले आइसोमराइजेशन पढ़ लो। आइसोमर्स हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, तो वो आइसोमर्स बनने हैं। ठीक है, देखो ट्रांस है, लाइट की प्रेजेंस में वो सिस में कन्वर्ट हो गया। मुश्किल से कन्वर्ट होता है, लेकिन चलो हो गया। वैसे ये कन्वर्शन ईजी नहीं होती। ठीक है बेटा जी, यूवी लाइट हमने डाली तो ये सिस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज आइसोमराइजेशन। ओके, नाउ कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन। इसमें क्या होना है, इसको मैं बोलूंगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एल्डोल, ये नाम से याद रखना, एल्डिहाइड से कन्वर्ट होगा एल्कोहल। देखो मैंने 2 एल्डिहाइड लेने हैं, लेट अस सी, मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 मैंने क्या लिए, एल्डिहाइड लिए। इसमें क्या होया, CH3 C डबल बॉन्ड O का एक डबल बॉन्ड टूट गया, ये H इसका ऐसे ही लिख दिया मैंने,
देखो CH3C, इसका डबल बॉन्ड टूट गया, एक H इसका लिख दिया, ऐसे ही मैंने नीचे को कर दिया क्योंकि इसने ऐड होना। अब इसका एक H निकला, देखो एक वैलेंसी कहाँ पे बनी, O पे, एक वैलेंसी कहाँ पे बनी, कार्बन के, क्योंकि डबल बॉन्ड जो टूटा है वो O का और C का टूटा है, तो एक यहाँ पे वैलेंसी है, एक यहाँ पे, तो इसका H निकल के देखो यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे भी वैलेंसी है तो यहाँ पे भी बन गई वैलेंसी, ये दोनों आपस में मिल गए, CH2C डबल बॉन्ड OH, क्या बना, एल्डिहाइड से अल्कोहल। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है इसमें भी देखो एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, दो एल्डिहाइड लिए, एक एल्डिहाइड का अल्कोहल बन गया, एक एल्डिहाइड वैसा का वैसा ही रहा। इसका अल्कोहल कैसा बना, कैसे बना, इसमें डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड टूट गया, एक वैलेंसी O पे बन गई, एक C पे बन गई, O की वैलेंसी को इसने H दे के पूरा कर दिया। अब यहाँ पे वैलेंसी बची और यहाँ पे भी बन चुकी है क्योंकि इसका H निकला तो दोनों आपस में मिल गए। तो प्रोडक्ट जो है वो है एल्डोल, एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसमें मैं कोई एसिड कैटालिस्ट डालूं तो फिर क्या होगा, CH3CH, इसका OH निकल जाएगा, इसका H, ये OH और ये H निकला, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका OH निकला तो यहाँ पे वैलेंसी बनी, इसका H निकला तो यहाँ पे वैलेंसी बनी, तो इन दोनों में आ गया डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये बीटा, ये गामा। फंक्शनल ग्रुप के अगले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ, दो एल्डिहाइड्स मिले, उन्होंने एल्डोल बनाया, और उसमें अगर मैंने एसिड कैटालिस्ट डाला तो उसमें वाटर निकल गया, तो मेरे पास बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है और फिर बन गया एल्डिहाइड। गुड लक। ये बेटा लास्ट टॉपिक